ہاں ابھی آگے سے جوتے نکالنے پڑیں گے یہاں سے, کراس کرنا ہوگا پانی. اچھا اب یہاں سے جوتے نکالتے ہیں. غاریں بھی نظر آ رہی ہیں. جی ہاں غاریں نظر, سامنے والے غاریں ہیں سر. یہ بھی غار ہے. یہ ہے بڑا ہے لیکن سامنے والے ہیں سر. ہاں کتنے. اچھا ابھی پانی کے اندر سے جا رہے ہیں. پانی گرم ہے. ہاں بہت زبردست پانی, دل چاہتا ہے پانی میں بندہ ٹھہرا رہے. یہ چشمہ کہاں سے آتا ہے اس کا؟ یہ پانی ہے نا, یہ دور سے آتا ہے. جی ہاں سر. ہاں یا قریب سے نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا ہے, دور سے ہے, ہاں قریب سے ہے سر. چشمے ہیں. چشمے چشمے. جی ہاں چشمے. جتنا جاؤ نظر آئے گا پانی. جی ہاں. آپ کہاں تک گئے پیچھے؟ اوپر. ہاں اوپر سے آپ کتنا کلومیٹر اندر گئے جہاں سے پانی آتا ہے؟ یہاں سے 15-20 کلومیٹر اوپر. ادھر بھی پانی ہے؟ جی ہاں سر. اچھا ٹھیک ٹھیک. سر اس طرف جائیں. ادھر. اچھا غاروں کو دیکھ کے. ہاں غاروں کو دیکھنا ہے. یہ غاروں کی ہسٹری بڑی لمبی ہے بھائی, بہت پرانی ہے جو ہم نے پڑھا ہے. اور یہاں عورتیں بھی آتی ہیں, زیارت کے لیے آتی ہیں کیا؟ پکنک کے لیے. ہاں یہ چنچی گاڑی میں آ گئے. ان کی چنچی آ گئی, ہماری گاڑی نہیں آئی. اچھا یہ اب غار نقصان ہو رہا ہے ان کو. یہ ادھر لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے. ہاں پانی آیا نہیں ایسے. یہ غاروں کے اندر لوگ کھیل رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کے آب اجدادی یہ غار والے. ہاں ظاہر نسل یہ ہوگی. یہی ہوگی سر. لوگ رہتے ہوں گے پھر. اچھا یہ اوپر بھی غاریں بنی ہوئی ہے. اوپر غاریں ہیں. اوپر کیسے چڑھتے ہوں گے؟ سب جگہ ہے, راستہ ہے. راستہ ہے. ہاں یا سیڑھیاں بنائی ہوں گی انہوں نے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی. ہوگی سر. ہاں ہے سر جگہ, راستہ بھی ہے وہاں سر. اچھا راستہ ہے جانے کے لیے وہاں ہے سر. ہے. اچھا جو گئے ہوں گے وہ جاتے ہیں, جو نہیں گئے وہ ڈرتے ہیں. اچھا ہاں ڈرنے کی کا مسئلہ نہیں, لیکن ایکسیس ہو وہاں تک انسان پہنچ جائے تو بہتر ہے. پیر کہاں ہے؟ پیر اس طرف ہے. اچھا اس طرف ہے. پیر کی طرف ہم لوگ جائیں گے. یہ بھی غار ہیں چھوٹے چھوٹے. ہاں اس طرف بھی غار ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی غاریں. اچھا زیادہ تر غار کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہی ہیں. چلو آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ابھی غاروں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہے. ہاں غاروں کے اندر غار ہے بھائی. ہاں وہ دیکھو غار کے اندر غار ہے. یہ دیکھو یہ غار کے اندر غار. یہاں عجیب قسم کے لوگ رہتے ہیں. غاریں بڑی ہے بھائی. جی ہاں سر بڑی ہے. ہاں ان کی سائز بھی بڑی ہے. یہ دیکھیں ابھی سائے کا سائے کی طرف لے لو تاکہ سر یہاں پر لوگ رہتے ہوں گے تو ظاہر یہ غاریں بڑی ہوں گی. لکھا یہ اندر نہیں ہے. کیو گریونگز کہتے ہیں جن کو. اچھا پرانی لکھا یہ نہیں ہے. میں آتا ہوں لکھتا ہوں بس یہی ہے. ہاں آپ اپنا نام لکھتے ہو, میں اپنا نام. نہیں پرانی جو ہمارے علاقے میں خزدار ہے ادھر پہاڑوں کے اندر غاریں بنی ہوئی, وہاں انگریونگز ہے. نہیں سر ادھر نہیں. وہ ہندی لکھائی پتہ نہیں کہ ابھی تک وہ ڈیکوڈ نہیں ہو گئے. اور یہاں یہ جو کہ مٹی کی غاریں ہیں نا. جی ہاں تو یہ عجیب قسم کے پتھر کے ہیں سر. یہ پتھر اور مٹی کے دونوں مکس ہیں. اس کو گچ کمبر ہم براوی میں کہتے ہیں. جی ہاں. اردو میں مرکب کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے انگریزی میں کنگلو مرٹ کہتے ہیں. جی یہ انہی جگہوں پہ یہ غاریں بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ لائٹ سلائنڈ کی وجہ سے آستہ سے میرے خیال میں کم ہوتی جا رہی ہے. جی ہاں. نہیں یہ کم نہیں ہوئے سر. ہاں جب یہ پہاڑ گرے. اچھا یہ پہاڑ سخت ہے, بہت سخت ہے. آ جاؤ آ جاؤ آگے. یہ بھی کسی زمانے میں ڈیمو وغیرہ تو نہیں ہے اندر. آ جاؤ بھائی. ہاں یہ دیکھو یہ سخت زمین ہے, بہت سخت سٹرکچر ہے. بالکل ہزاروں سال پرانی غاریں. کسی غار کے اندر جا کے پھر بات کریں گے ادھر. یہ بھی غار بھائی. یہ بھی غار ہے.
अच्छा कार के अंदर फिर चले, हाँ किस कार के अंदर? हाँ वो सामने वाला तो बिल्कुल, किसी के अंदर जाके उधर बात करेंगे, ठीक है, जहाँ हम लोग इजी फील करें, कंफर्टेबल फील करें, गर्मी न लगे। और एजाज है, कुछ सवाल पूछेंगे मुझसे, ज़ाहिर है हम लोग आ गए, कई सवाल हमारे जहनों में उभर रहे हैं, तो उन सवाल के हल करने की कोशिश करेंगे, जवाब के जो सवाल हैं हमारे जहनों में। एजाज जी सर। ठीक है, फिर जी सर, बहुत सारे सवाल अभी जहनों में उभर रहे हैं। जी हाँ सर। ये हाँ सर, पूछना तो है। केफ सिटी ऑफ बेला, जी हाँ सर, ये बलूचिस्तान में एक अपनी बिल्कुल सर, एक अलग इसकी खासियत है, नोयत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये गारों को देखो, हाँ सर, देख रहे थे टीवी में, जी हाँ सर, मुख्तलिफ चैनल्स पे। जी बिल्कुल। आज फिजिकली हम लोग आ गए यहाँ। हाँ सर, बिल्कुल। अब देखा, बहुत मज़ा आ रहा है, इंसान चीज़ों को फिजिकली देखता है, जी हाँ सर, बात फिर समझ आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर। अब गार के अंदर लोग रहते होंगे, हम जाके हम उसके अंदर बैठ के बिल्कुल अपनी सर, पुरानी वाली ज़हन बनाएंगे, फिर जी हाँ सर, सोचेंगे कि भाई हम जी उस वक्त मेडिवल यानी कि कुरून औला के दौर के हम लोग। सर ये इनके घर रहे होंगे ना? ये इनके मुख्तलिफ, आज मैं आपको बताता हूँ फिर जी जी, कि किन मकसद के लिए बनाए गए। जी हाँ सर, मुख्तलिफ अदवार में बिल्कुल सर, इनका कोई ख़ास मकसद है, ऐसे नहीं गारें बनाई गई। जी हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, चढ़ना भी हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। और सवाल पैदा होता है कि जी हाँ, इतनी ऊंचाई पर ये गारें क्यों बनाई गई, ये भी एक सवाल है। सवाल है, हाँ सर, बहुत ठीक, चलो नीचे गारें बनाई गई थी, नीचे वो तो ठीक है, जी हाँ, लेकिन इतनी ऊपर गारें क्यों बनाई गई, और इस जगह ये गारें बनाई गई, दूसरी जगह क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। ये भी सवाल है, हाँ ठीक, यकीनन सर, मुख्तलिफ किस्म के सवाल जहनों में उभरते हैं, बहुत सारे किस्म के सवाल पास पहुँच रहे हैं मुख्तलिफ गारें। ये गार के अंदर गार है भाई। हाँ सर। सर शायद ये घर होंगे उनके, ये ज़ाहिर घर होंगे। बिल्कुल। आ जाओ भाई, डेमू वगैरह तो नहीं है, ये बहुत लंबी गार है। जफर आ जाओ। वाकई सर, वाकई काफ़ी अंधेरा है। आ जाओ भाई, इसको की पिक्चर को कैप्चर करो, ये अंदर जा सकते हैं, आ जाओ। हाँ लाइट जलाओ, लाइट बो, आ जाओ। हाँ तले लाइट खरा, क्या फील कर रहे हो यार? काफ़ी अंधेरा है सर। अंधेरा भी है लेकिन कंफर्टेबल फील करे बंदा, गर्मी नहीं है हाँ अंदर। सर, हाँ सर, ये मिट्टी के गार हैं तो ज़रा हाँ लाइट ठंड भी होगी। हाँ। शायद सर ये इसलिए बनाए होंगे इन्होंने कि गर्मियों में ठंड भी है। आपके उसमें जहन में क्या सवाल आते हैं? ताकि सर मेरे सवाल, बहुत सारे सवाल थे मेरे। एक सवाल पहले, एक सवाल बताओ सर। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये उनके घर रहे होंगे, ये इसलिए बनाए उन्होंने होंगे कि ये मतलब ये गर्म इलाका है तो ये ठंड होंगी, ठंड अच्छा, के लिए। असल में ये जी कि ये गारें जो आम जगह पे नहीं बनाई जा सकती। जी हाँ बिल्कुल सर। और ये इसकी स्ट्रक्चर देखो। जी हाँ सर। भाई नहीं करो ऐसा ना हो कि ये फिर गिर जाए, नहीं हो सकता है ये ज़िलज़ले भी होंगे, मुख्तलिफ झटके, लेकिन फिर भी अभी तक सही सालम है। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि ये जो ज़मीन की यहाँ साख्त है जी हाँ सर, वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर। मिट्टी और पत्थर के, ठीक है, मिलाप से। बिल्कुल इसको अंग्रेज़ी में कंग्लोमेरेट कहते हैं। जी जी। और फिर बिरावी में कहते हैं गचकम्बर, ये सुना है आपने? हाँ सर सुना। और ये उर्दू में मुरक्कब। मुरक्कब, तो इसकी सिंग मिट्टी होती है, बहुत सख्त होती है, और बिल्कुल। अक्सर ये गारें वहाँ बनाई गई है। जी हाँ सर। पहले मतलब अब बिल्डिंगें महला दूसरी जगह बनाई जाती हैं जहाँ शहर हो, ज़मीन हमवार हो, जी जी। और पोश एरिया, जिस तरह आज हमारा डिफेंस है, जी हाँ सर, मुख्तलिफ इलाकों में पोश एरियाज है। बिल्कुल सर। तो हो सकता है कि माजी का जी हाँ। ये पोश एरिया हो। जी हाँ सर, आपका मतलब है डिफेंस एरिया वैसा ये ठीक है, इस तरह बिल्कुल का। सर, यकीन। इसके अलावा जी मजहबी रसूमात के लिए बनाते थे। अच्छा। लोग आके यहाँ अपने पूजा पाठ करते थे। अच्छा अच्छा। फिर जब इनके अंदर आते थे, देखते थे कि भाई ये बहुत कंफर्टेबल है, जी हाँ। इसमें गर्मी नहीं है, जी हाँ बिल्कुल तो सर्दी भी नहीं होती, यहाँ नहीं लगती। जी हाँ तो बिल्कुल। फिर लोगों ने अपने शेल्टर के लिए इनको इस्तेमाल किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद फिर अब जो मॉडर्न दौर है, जी जी जी। तो मॉडर्न दौर में जदीद जो हम जिससे गुजर रहे हैं, अब रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हाँ सर, आके विजिट करते हैं, देखने के लिए इंजॉय करते enjoy हैं, करते हैं, तो सिर्फ इस मकसद के लिए रह गए हैं। बिल्कुल सर। तो
इनका मकसद ये है। जी हाँ सर। और फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये ऊंचाई पे क्यों बनाई गई है। जी हाँ सर। पहले हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले जी जी। यहाँ जंगली जानवर भी होते थे, हाँ, प्रीडेटर्स, जिनको प्रीडेटर्स कहते हैं इंग्लिश में। जी हाँ जी हाँ। वो फिर लोगों पे हमला भी करते थे। यहाँ हिरन होंगे, जी हाँ, मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी होंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उनके साथ साथ जहाँ हिरन हो तो वहाँ वॉल्फ भी होते हैं, डियर्स भी होते हैं, चीते भी होते हैं, तो ज़ाहिर है वो लोगों पर भी हमला करते होंगे। फिर उन्होंने ऊंची जगह पे ये बनाई है ताकि वो आके सेफली रहे, किसी खतरे के सेफ्टी की खातिर सर ये बनाया। इस वजह से मेरा अंदाज़ा ये है कि ये इन्होंने बनाई होगी इतनी ऊंची बिल्कुल सर एरिया पे। जी हाँ सर। तो ये बलूचिस्तान में अहमियत का ख़ास एरिया है, बिल्कुल सर। और इसको केव सिटी कहते हैं, केव सिटी ऑफ बलूचिस्तान। हाँ तो सर, यहाँ पहले लोग सुना दूर था, से अभी देख भी लिया माशाल्लाह। देख भी लिया, बिल्कुल। तो बहुत तो हमें अच्छा लगा, और हम लोगों को दिखा रहे हैं, गार के अंदर से बात कर रहे हैं। और यहाँ तकरीबन 500-600 के लगभग यहाँ गारें इस किस्म की बनाई गई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये तकरीबन लैंड स्लाइडिंग की वजह से इनको नुकसान हो रहा है, जी जी। लेकिन ये हमारे आर्काइव में शामिल हैं तकरीबन। इनको चाहिए कि फिर यहाँ ऐसी जगह हो, लोगों के लिए सहूलत हो, होटल हो, और जाकर लोग विज़िट करें, फिर स्टे भी करें, उनके लिए आसानी हो। हाँ बिल्कुल। फिर इससे अर्निंग भी हो सकती है अगर। हाँ सर, हो सकती है। हाँ? आप कह रहे हो कि विजिटिंग एरिया, मतलब विजिटिंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये विजिटिंग एरिया नहीं है, ज़बरदस्त एरिया है। हम कहाँ से तकलीफ काट के यहाँ तक आ गए, देखा, खुशी हो गई, और हमारी थकावट हो गई ख़त्म, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये अच्छा, फिर एक और सवाल पैदा हो जाता है जी जी। कि आया यहाँ परमानेंट सेटलमेंट थी, लोग हमेशा रहते थे। जी हाँ। फिर सवाल पैदा होता है कि हो सकता है ये अपनी सर्दियों के लिए इन्होंने ये जगह बनाई हो। हाँ हो सकता है। हाँ, हो सकता क्योंकि अंदर इंसान आ जाता है तो, और ये वैसे इलाका भी तो गर्म है, गर्म है। हाँ सर, सर्दियों में इतनी सर्द नहीं होगी। बिल्कुल ये इक्वली सर्दी और गर्मी दोनों के लिए कंफर्टेबल है। हाँ, कंफर्टेबल। तो फिर सवाल पैदा होता है कि यहाँ परमानेंट सेटलमेंट थी, हमेशा लोग रहते थे, लेकिन पुराने ज़माने में लोग शिकार करके अपना खुराक, बिल्कुल सर, ठीक है, हाँ पैदा करते थे। तो उनकी नोमैडिक लाइफ थी, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते थे। तो इनकी, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये कोई ख़ास मौसम के लिए इनकी जगह होंगी ये। बिल्कुल सर। और क्योंकि वो जो शिकार होते हैं ना, जी हाँ, वो जहाँ बारिशें हों, उनके लिए चारा हो, तो फिर उसी के साथ साथ वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हो सकता है कि अपनी खुराक की तलाश करने के लिए ये लोग, जिस तरह शिकारी जानवर है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये लोग भी हो सकता है उनके साथ साथ जाए ताकि उनका खुराक का बंदोबस्त हो। बिल्कुल सर। तो सर्दी में इधर हो, गर्मी में किसी और इलाके में हो। बिल्कुल सर, ठीक है। हो सकता तो मेरा अंदाज़ा ये है कि परमानेंट सेटलमेंट ये नहीं है। जी हाँ, ये सर्दियों के मौसम के लिए ये जगह उन्होंने बनाई होगी। बिल्कुल सर, मेरा अंदाज़ा ये है। और ऊंची जगह भी है कि सेफ प्लेस होगा ताकि वो खतरनाक जानवरों पे हमला ना कर सके। सर मेरा एक सवाल है, ये हाथ से बनाई होंगी या हाँ, पत्थर से? ये अच्छा सवाल है भाई जी। असल में ये पत्थर के ज़माने के बनी हुई हैं। जी हाँ सर, और पत्थर का ज़माना उसको कहते हैं पोलियोलिथिक एज। पोलियोलिथिक एज, जी। तकरीबन ये 33 लाख, जी जी, 33,000 साल, 33 लाख साल पुरानी बात है बिल्कुल कि जब स्टोन एज था, जी जी, लोगों ने पत्थर को तोड़ के जी जी, उसको फिर उसको चाकू की तरह इस्तेमाल किया या किसी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर इसी पत्थर को तराश के उन्होंने इनको खोदा होगा। बिल्कुल सर, ये पत्थर के ज़माने के, वो तकरीबन 33 लाख ये पुरानी गारें हैं। बिल्कुल सर, यकीन। ये उस वक्त के, आपके सवाल का जवाब ये है। और क्या सवाल आपके जहन में? सर मेरे जहन में है कि यहाँ पर जो लोग रहते होंगे, हाँ, वो कबायली लोग होंगे या तो फिर शहरी लोग, किस तरह के लोग होंगे? तो वो तकरीबन उस वक्त का एक शहर, उसको तस्वुर करो। हाँ कि यहाँ आबादी होगी, इतने लोग यहाँ रहे होंगे। सारे केव्स हैं तो ज़ाहिर आबादी होगी। अच्छा, फिर इसकी स्ट्रक्चर देखो, आगे यहाँ आगे रास्ता बंद है, फिर हो सकता है यहाँ बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग रहें ताकि सेफ जगह पे अपने आप को महसूस करे, और दुश्मन अगर आ जाए तो आगे न जा सके, और दुश्मन दूर से नजर आ जाए उनको, तो उन पर वो अटैक कर सके। ठीक है, ये भी हो सकता है। सर ये भी हो सकता है पहले के लोग पहाड़ों में रहते हों, उनकी मतलब अब आजकल हम शहरों में रहते हैं, हमारा जाए वकूफ जैसे शहरों में, उनका पहाड़ हो। पहले ज़माने में तो मैंने कहा कि आजकल हम लोग शहरों में रहते हैं। जी जी। तो पहाड़ों में अगर रहे तो पहाड़ों को खोद नहीं सकते, और ये ऐसी ज़मीन है इसको खोद के फिर ये ज़मीन गिरती नहीं है, इसकी मिट्टी। तो ये एक ख़ास एरिया है, आम लोग यहाँ रहते नहीं होंगे। ये
خاص لوگ ہوں گے جو پاورفل ہوں گے, ان کے پاس پیسے ہوں گے, ان کے پاس اختیارات ہوں گے, اسپیشلی انہوں نے بنوایا ہوگا. ہاں یہ مطلب اس وقت کے لیے خاص ایریا ہوگا اس ٹائم کے لوگوں کے لیے, اور جو خاص ایریا ہوگا تو خاص لوگ بھی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں میں نے سنا ہے مختلف متس ہے, ان کے خیالات ہے لوگوں کے بارے میں, ان غاروں کے بارے میں. کہتے ہیں کہ یہاں پہلے جنات رہے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں سر ہو سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بدھ مت کے زمانے کے, ہو سکتا ہے بدھ مت کے زمانے وہ تو انسان تھے. بالکل بالکل. تو مختلف متس ہے, لیکن بس ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بالکل. جہاں انسان سیفٹی کے لیے ضرورت ہو, شیلٹر کے لیے ضرورت ہو, ٹھیک ہے, جہاں انسان رہے کمفرٹیبل فیل کرے, تو ظاہر ہے پھر اپنے لیے غاریں بنائی ہوں گی. آپ کا کیا خیال ہے سر, یہ جنات بھی رہ سکتے ہیں یہاں پر؟ بھائی جنات تو ہر جگہ ہے, وہ بھی ہماری طرح مخلوق ہے, ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. بالکل. تو اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہماری باتیں بھی سنے. بالکل یقیناً. بالکل ٹھیک ہے. تو آ کے بالکل غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ آ گئے, ہمیں بہت فیسلیٹ کیا, ہمیں معلومات دی, اور فزیکلی یہاں تک ہمیں لائے اور ہمارا ساتھ دیا. اور یہاں کے علاقے کیا بندہ ہے, وہ خاص بندہ ہے, تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم لوگ آ گئے غار کے اندر, ہم بات کر رہے ہیں فزیکلی. غلام قادر صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں فیسلیٹ کیا, یہاں تک ہمیں لائے. جی ہاں سر. ابھی سر یہاں بھی دیکھو, یہ ابھی ایک سانپ آیا ہوا ہے, یہ سانپ اندر ہے. بالکل یہ اندر ہوگا, یہ اندر ہوگا. بالکل ہم لوگ اندر بیٹھے بات کر رہے ہیں, سانپ بھی ہماری باتیں سنی ہوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ نکلے. یہ اس کی نشانی ہے, دیکھو سانپ کی. اور یہ خطرناک جگہ ہے. پہلے لوگ رہتے تھے, آپ سانپ رہتے ہیں یہاں. ہم لوگ اندر گئے خطرہ مول لیتے ہوئے. بالکل. چلو یہ ابھی بھائی نظارہ کرو ان کا. اجاز بھائی کیسے محسوس کیا؟ سر ماشاءاللہ ماشاء اللہ. یہاں ابھی دیکھو کیو سٹی واقعی کافی 500-600 کے لگ بھگ یہ غاریں ہیں, اور وہاں سے پانی بہ رہا ہے. جہاں میں نے دیکھا ہے جہاں غاریں بنی ہوئی ہے وہاں قریب پانی بھی ہے. بالکل. اور پانی ہر وقت انسان کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر انسان نہ بلکہ ہر چیز, کوئی بھی جاندار زندہ رہ ہی نہیں سکتا. بالکل. تو یہ پانی ہے, یہ غاریں ہیں, اور عجیب قسم کا نظارہ ہے. آنکھیں خوشی ہو گئی تو دیکھ کے پتہ چلا کہ واقعی کیو سٹی ہے, اور اس کی خوبصورتی ایک الگ ہے. لوگوں کو اگر آنا ہے, اور خزہ سے تقریباً 200 کلومیٹر ہوگا فاصلہ, 200 کلومیٹر, اور بیلا سے 150. اچھا, بیلا سے کتنا دور ہے یہ؟ بیلا سے تقریباً 40 کلومیٹر. بیلا سے 40 کلومیٹر. جی ہاں. تو یہاں سے مختلف ایریا سے لوگ آ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. جی ہاں. اچھا ٹھیک.